بہاول نگر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی زیر صدارت دفتر میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں بہبود فنڈ گرانٹ سے سال 2020-21 کے تحت مجموعی طور پر 4,12,69,000 روپے مالیت کے 1,643 چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر اور بہبود فنڈ برانچ کے انچارج ہمایوں جاوید خان بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکالرشپ کی مد میں 21,01,61,000 روپے مالیت کے 1,193 چیک طلباء و طالبات میں تقسیم کیے۔ تجہیز و تکفین کے لیے 7,04,98,000 روپے مالیت کے 218 چیک تقسیم کیے گئے، جبکہ شادی گرانٹس کے لیے 12,61,00,000 روپے مالیت کے 232 چیک تقسیم کیے گئے۔ ڈیرہ مراد جمالی ٹول پلازا کے قریب پولیس کی تحویل میں رکھی گئی کھاد کی ٹرک پر ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکار پر مقامی افراد کا تشدد۔ مقامی کسان کھاد اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، روکنے پر پولیس اہلکار تشدد کا نشانہ بن گیا۔ فوٹ آباد شہر اور گرد و نواح میں دھند سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فوٹ آباد سے ملحقہ چولستان میں بھی دھند۔ وہاڑی شہر و مضافات میں شدید دھند کا راج۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ شدید دھند کے باعث اسکول کالج جانے والے طلباء کو مشکلات کا سامنا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک محمد قاسم نے کہا کہ دھند میں ڈرائیور حضرات سپیڈ کم رکھیں اور گاڑیوں پر ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ عوام شدید دھند میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ سرگودا پولیس کا ایک ہفتے میں دوسرا پولیس مقابلہ۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق دوسرا ڈاکو بھی پولیس کی گولی کی بجائے اپنے ہی ساتھی کی لگی گولی سے ہلاک ہو گیا۔ ضلع بھر میں جرائم پیشہ ریکارڈ یافتہ ملزمان کو پولیس مقابلوں میں پار لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے موبائل ڈکیتی میں ہلاک ملزم کو متعدد ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث اور مطلوب بتایا جا رہا ہے۔ آئی جی اسلام آباد محمد احسن یونس کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تھانہ کورال اور نون پولیس نے قبضہ مافیا کے 2 سرغنہ گرفتار کر لیے۔ کورال پولیس نے قتل کے مقدمے میں مطلوب راجہ آفتاب عرف بلہ کو گرفتار کیا۔ نون پولیس نے عمران عرف مانی کو گرفتار کر کے اسلحہ اور 2200 گرام منشیات برآمد کر لی۔ دونوں ملزمان کے خلاف متعدد قبضے، قتل، اقدام قتل، شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ سرگودا ہائی کورٹ میں سرگودا سے تعلق رکھنے والی فوزیہ بطول کی بازیابی کا معاملہ۔ اعلیٰ عدلیہ نے 3 پیشیوں کے بعد بھی خاتون بازیاب کروا کر پیش نہ کرنے پر ڈی پی او سرگودا کی سرزنش۔ اعلیٰ عدلیہ نے 30 دن میں اغوا شدہ خاتون پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جی بالکل، آپ کا مشورہ جو ہے وہ تجویز آپ کی بلکہ جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس پہ بھی کام کریں گے۔ میں اے ایس پی صاحب سے کہوں گا کہ جب نارمل اپنے حالات کر کے اپنی پولیس کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کے بعد جو ہے وہ پہلا کام جو ہے وہ یہ کریں کہ کمیٹیاں بنائیں تاکہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ اس لیول تک نہ پہنچیں کہ تھانے کو پریشان کریں۔ سرگودا میں ضلع انتظامیہ کی ایک اور عجیب منطق سامنے آ گئی۔ میونسپل کارپوریشن کے زیر نگرانی جناح ہال کو بغیر فیس کے تحریک انصاف کو ورکر کنونشن کے لیے دے دیا۔ تعلیمی ادارے، مذہبی جماعتوں کے پروگرام کی فیس وصول کی جانے لگی۔ تحریک انصاف کے عہدیداران اور سپورٹران کی بدمانیاں جاری۔ اسٹیج کے لیے کرسیاں بھی دفتری گاڑیوں میں پہنچائی گئیں۔ قصور کے علاقہ بھٹا سوغن میں نئی موٹر سائیکل کو ہاتھ لگانے پر ساجد وغیرہ کے وحشیانہ تشدد سے نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ 24 سالہ نوجوان ذوالفقار کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جو آج دم توڑ گیا۔ پولیس تھانہ بی ڈویژن تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ تشدد سے جاں بحق ذوالفقار کی لاش گھر پہنچنے پر کوہرام برپا۔ ذوالفقار کی والدہ و لواحقین کا ملزمان گرفتار نہ کرنے پر احتجاج۔ والدہ کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کے قاتل آزاد ہیں، انصاف دیا جائے، صرف موٹر سائیکل گرنے اور اس پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے لخت جگر مار دیا گیا۔ بھائی سانوں تو انصاف چاہیے، سارے بچے نے نجائز ماریا ہے، سارے انصاف ہونا چاہیے۔ یہ پھانسی لگنا چاہیے۔ ایویں ہر کنا پورا محلہ یہاں کے بارے خلاف چلتا پیا۔ یہاں سارے بے سارے انصاف چاہیے۔ سائیکل موٹر سی وہ ڈگی ہے، اندر اتنے انہیں ہاتھ رکھا ہے تو انہیں رکھا کہ میرے پتر چھوٹیاں نہ کٹن لگ پیا۔ میں انہوں اندر لے آندا ہے تو نہ ساڈا بوا پڑھن لگ پہ، بدتمیزی کر لگ پہ۔ میری بیٹی اٹھی ہے، انہیں جا کے بوا کھولیا، وہ ساڈے اندر واڑیا ہے۔ احمد پور شرکیہ کے نواحی موضع کنڈی پرہار میں کمسن بچے امان اللہ کی آنکھ زخمی ہونے کا معاملہ۔ تھانہ صدر احمد پور شرکیہ میں بچے کے والد محمد اقبال کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ مرکزی نامزد ملزم وزیر گرفتار۔ ڈی پی او کی مقامی پولیس کو مقدمہ کی تفتیش میرٹ پر کرنے کی ہدایت۔
जाफराबाद में ज़रूरी खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक रेट पर खाद की फरोख्त के खिलाफ नेशनल पार्टी ने काश्तकारों के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहिरीन ने रोड को ब्लॉक कर दिया। मजीद तफसील मिस्री बुगटी की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद में यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी और ब्लैक रेट पर फरोख्त के खिलाफ नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने ज़िलाई इंतजामिया और खाद माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद के तबादला और ज़राई खाद की फराहमी का मुतालबा किया। या जो है ना हम इसलिए कर रहे हैं कि यूरिया खाद की इंतज़ामिया और इस डीलरों ने जो ना मिली भगत से इनकी जो मसूली किल्लत पैदा किया गया है और उसको 1780 के बजाय उसको 3,500 पे बेचा जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ हम आज सरापा एहतजाज है और आवाम के साथ। हम उस वक्त तक अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक कि खाद लोगों को मिलना चाहिए असल कीमत पे। अगर नहीं मिल रहा, इंतज़ामिया जुर्रत करके, अगर इंतज़ामिया मिलवस नहीं है, जुर्रत करके तमाम दुकानों को सील करे और सूद पे चलाने वालों को खिलाफ FIR करे। हम उनके साथ हैं। जब तक ये मामला नहीं करेंगे हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जाफराबाद को मंसूबा के तहत यहाँ पर जो है ना एक डूबने की कोशिश की जा रही है। एक तो पहले से हमें पानी नहीं था, जो है ना चावल की फसल नहीं हुई, अगर अब गंदम की फसल तैयार है उसको खाद नहीं है। बड़ा अलमिया ये है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर इतने नाहिल हैं कि वो खुद जाके डीलरों से मीटिंग करके वो करते हैं कि आप 2500 पे चलाओ, 1800 रेट वाला 2500 किस बुनियाद पे आप उसको इजाज़त देते हैं 2500? और जुल्म की इंतहा ये है कि 2500 पे भी ये लोग नहीं दे रहे हैं, वो रात की तारीकी में 3000 पे बेच रहे हैं डीलर। यहाँ पर माफिया बना हुआ है, ज़मींदार को कोई पूछने वाला नहीं है। ज़मींदार दर दर की डोकरे भटकता रहा है कि मुझे एक बोरी खाद की चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। वो भी उन लोगों को मिलता है जो इनके गुमाश्ते वो नुमाइंदे हैं, जो 2500 में ख़रीद कर उसी बोरी को 3000 में बेचते हैं। ये एक मुकम्मल माफिया बना हुआ है। मैं तो ये मुतालबा करता हूँ यहाँ पर जो डेरालिहार में जो डीलर आए उन 5 डीलर को पाबंद किया जाए कि वो चीज़ मंगवाएं, खाद मंगवाएं। अगर कोई नहीं मंगवाता तो उसको सील किया जाए। उसको क्या हक बनता है? वो दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो ब्लैक पे चलाने के लिए तैयार है, लेकिन आप असल कीमत पे चलाने पे क्यों नहीं चलाते? ये हम नेशनल पार्टी मुतालबा करता है कि डीलर के खिलाफ और इन नाहल DC के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए और इनका फौरी तौर पर तबादला किया जाए। इसको कोई हक नहीं, ये रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है, ये नाकाम है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर का फौरी तौर पर तबादला किया जाए। मुजाहिरीन ने खाद की फराहमी तक एहतजाज को जारी रखने का ऐलान किया। मिस्री बुगटी, TNN, जाफराबाद। लिया थाना चौबारा पुलिस की कार्रवाई, जाली सरकारी मुलाजम गाड़ी समेत गिरफ्तार। मुलजम तारक से रिवाल्विंग लाइट लगी जाली सरकारी गाड़ी बरामद कर ली गई। मुलजम खुद को सरकारी मुलाजम जाहिर करके लोगों के साथ फ्रॉड करता था। मुलजम को दौरान चेकिंग शक होने की बिना पर गिरफ्तार किया गया। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदे सलासल कर दिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। मंगोली थाना के SHO कादर रिंद की बर वक्त कार्रवाई। टोल प्लाजा डेरा मुराद जवाली के करीब पुलिस एहलकार मोहम्मद रहीम मगसी पर तशद्दुद करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार और इन 3 मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। ज़िला तुरागढ़ के बलाई इलाकों का राब्ता सड़कें बंद। 7 दिन गुजरने के बावजूद सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया सड़कें खोलने में नाकाम। बलाई इलाकों अशाए खुर्दोनोश की शदीद किल्लत, आवाम की मुश्किलात में इजाफा। हालिया बर्फबारी से बंद सड़कें ताहाल आवाम के सफ़र के लिए खोली ना जा सकीं। मरीजों को अस्पताल ले जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। सैरी कोहानी रोड ताहाल बर्फबारी की वजह से बंद। ज़िला इंतज़ामिया लापरवाही की नींद सो रही है। घरों में मरीज अस्पताल ना ले जाने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों से तड़प रही हैं। अहले इलाका के अवाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया बारिशों और बर्फबारी की वजह से 7 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल बंद हैं। हमारी दर्द तकलीफ से ज़िले इंतज़ामिया बेखबर है। इलाका के दुकानों में राशन ख़त्म हुआ है। अगर मज़ीद कुछ दिन रोड बंद रहा तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। दा ट्रैक्टर दलते के वलाड़े पिंजा के दा तकरीबन 11:30-12 बजे दी ला तरवसा पूरे दा ट्रैक्टर वाला पता नहीं जीपान का तशपक जीपान वलाड़ी ची दे नड़म बने वीडियो गानो के ता तो खोदले शमा और आगा का पसा वलाड़ी आवाम ते दा आस्ते आस्ते पैदल ला रवान दे गाड़ी पखपल अखपल से मने पसा वलाड़ी ट्रैक्टर वाला दा वलाड़ी दा कार न कई और द पिंजा गले पोर्टल के खब बेगम पाराम वलाड़ी ड्राइवर एम पता नहीं। महंगाई के सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया। हुकूमत चलाना हर किसी के बस में नहीं। अभी भी वक्त है इमरान खान इस्तीफा दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी जमात है। अवाम का दर्द रखने वाली सिर्फ वाहिद पार्टी है जो अवाम के मफाद के लिए इक़दाम करती है।
क्योंकि पीटीआई सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है। सिलेक्टेड और नालायक लोग कभी अवाम के मसीहा नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने IMF के फरमाइश पर ये टैक्सेस की भरमार है और मिनी बजट आ रहा है जो इस वक्त असम्बली में ज़ेर गर्दिश है। लेकिन अपोजिशन इंशाअल्लाह इसको रोकने में भरपूर इक़दाम करेगी और इसको पास नहीं होने देगी इस बजट को, और क्योंकि ये एक अवाम दुश्मन बजट है। और इसके साथ जो कुछ ही दिनों पहले मर्री में एक अजीम साने हुआ है और इनकी सिलेक्टेड नालायक और निकम ओवर कज़ई में अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद मीर अनवर शाह मियाँ के मिज़ार पर पाबंदी पर प्रेस क्लब पारा चिनार के सामने एहतजाज। रिपोर्ट के मुताबिक अजीम सूफी बुजुर्ग के मिज़ार पर पाबंदी 45 दिन रात पुरअमन धरने के बावजूद रियासत मदीना की जानिब से कोई भी मस्बत नताइज हासिल नहीं हो पाए। मुजाहिरीन का कहना था कि रियासत मदीना के दावेदारों ने करतारपुर सिख बरदरी के लिए तो खोल दिया, मगर हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं जो हमारे अकायद पर सदियों से पाबंदी क्यों लगाई गई है। आला हुकाम से फौरी तौर पर मिज़ार की तामीरात का काम शुरू करने की इजाज़त दी जाए, बसूरत दीगर अदलिया से रुजू करेंगे। ननकाना साहिब थाना सिटी ननकाना पुलिस ने बैनुल इज़लाई चोर गैंग के 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार करके मुल्ज़मान के कब्जा से 3 कारें, 5 मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए नकदी बरामद कर लिए। DSP सर्कल गुलाम मुस्तफ़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डूंगा बूंगा में खाद डीलर से असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर सैयद उस्मान मुनीर बुखारी की मुलाकात में खाद कोटा में 30% इजाफा करके 100% कर दिया। जो खाद डीलर हुकूमती रेट 1768 रुपये में फ़रोख्त नहीं करेगा उसकी कंपनी की डीलरशिप कैंसिल, ब्लैक लिस्ट और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद जानते हैं हमारे TNN के नुमाइंदे वक़ास हफीज़ से। जी वक़ास, बताइएगा। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर, जो कि डूंगा बूंगा में तशरीफ़ लाए और इन्होंने खाद वालों डीलर हजरात के साथ मीटिंग की। हम इनसे जानते हैं कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या था और इस मीटिंग के हवाले से क्या कारगुजारी थी और इनका क्या कहना था और इनके जो खाद माफिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट चूँकि गंदम की प्रोडक्शन के हवाले से पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तकरीबन 10.5 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पे गंदम काश्त की गई है, तो उसी तरह खाद की डिमांड भी यहाँ पे ज़्यादा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर जितनी खाद की इनकमिंग हो रही है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के थ्रू आ रही है, तो वो डीलर हजरात के थ्रू और उसमें महकमा ज़राअत के थ्रू 100% उस खाद की फराहमी को किसान तक यकीनी बनाना फ़र्ज़ है। इसी मकसद के लिए हमने डीलर से भी आज मीटिंग की है। उसमें कुछ माइनर इश्यूज़ आ रहे थे, उनके साथ बैठ के सॉर्ट आउट किए हैं और महकमा ज़राअत को एक्टिवेट की है, ताकि मेन मकसद ये है कि जो खाद किसान के लिए आ रही है, अगर वो डेली बेसिस पे 100% उसकी ज़रूरत तो नहीं पूरी हो सकती उस तरह से, चूँकि अराइवल कम है, तो जैसे जैसे अराइवल बेहतर हो रहा है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी खाद आ रही है वो डेली बेसिस पे किसान तक पहुंच जाए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि खाद में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें से निकलने वाले टोकन के हवाले से यहाँ एक इलाका है तारा जाट, उसमें बहुत सारे लोग उस टोकन को पहले ही कैश करवा लेते हैं। जो मौजूदा किसान हैं उन तक वो टोकन वाली सब्सिडी नहीं पहुँचती। इस हवाले से क्या आपके इल्म में ये बात है? अगर है तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसमें यूरिया खाद के हवाले से तो टोकन DAP में मैं चेक करवा लेता हूँ, उसमें महकमा ज़राअत बेहतर इनपुट दे सकता है कि अगर कोई इस तरह का टोकन है तो वो डेफिनेटली वो किसान के लिए है। अगर कोई भी बंदा उसके मिस यूज़ में कोई मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ FIR भी होगी, मौके पे उसे अरेस्ट भी करवाएंगे और जो भी उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो हम अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा सर, डूंगा बूंगा गल्ला मंडी इस वक्त तालाब का मंजर पेश करिए, किसान हजरात को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, इस हवाले से भी कुछ रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, ये जहाँ पे डूंगा बूंगा में सीवरेज के हैं वो जेन्युइन मसाइल हैं, उस पर मैं एक आध दिन ठहर के हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर ना भरपूर एक रिव्यू मीटिंग की जाए, ताकि इस एक तो कोई टेम्परेरी सोल्यूशन तो फौरी तौर पे हम अडॉप्ट करेंगे। सेकेंडली ये है कि हम इसके परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, ताकि कोई मेगा स्कीम कोई प्रपोज करें ताकि ये सीवरेज के मसाइल से छुटकारा मिल सके। अच्छा सर, दूसरा, आजकल जो बल्दियात हैं ये भी आपके अंडर हैं और इस हवाले से जब हम सैनिटरी वर्कर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं और शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नुमाया हैं और कुछ आपको फोटो भी मुहैया हो जाएंगी, तो इस हवाले से भी आप ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, ये इशू भी टेकअप किया गया है। इनका माइक्रो जो प्लान है सफाई के हवाले से वो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो इसमें जो भी सैनिटरी वर्कर है वो अपनी ड्यूटी पे जाएगा और इस तरह की जो सफाई के मुतल्लिक जो शिकायत हैं वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कमिंग डेज़ में बिल्कुल नहीं होंगी।
जी, और सर इंक्रोचमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोगों को गुजरना मुहाल हो जाता है, खुसूसन हाईवे रोड डोंगा बुंगा पे, और छुट्टी के वक्त जब बच्चियाँ गुजरती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इस हवाले से ज़रा स्ट्रिक्टली एक्शन के हवाले से कुछ बात। जी बिल्कुल, यहाँ पे टेम्परेरी इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। रेडी माफिया है जिसने रोड के दोनों साइडों पे रेडियाँ इलीगली दुकानों के आगे लगा के वो रोड को भी कंजेस्टेड करते हैं और ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा करते हैं। इनके ख़िलाफ़ हम एक भरपूर ऑपरेशन कमिंग डेज़ में प्लान कर रहे हैं ताकि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए और रोड की असली हालत को बरकरार किया जाए। जी, चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया ने सेटेलाइट टाउन बी ब्लॉक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 300 बोरी बरामद कर ली है। मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खाद बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया गुलाम मुर्तज़ा ने खाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की। सेटेलाइट टाउन बी ब्लॉक में मकामी आड़ती के खिलाफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि बरामद शुदा खाद के बैग गवर्नमेंट रेट पर आवाम को फराहम की जाएगी।